polity, constitutional bodies part 2. In this session, I am going to cover some very important constitutional bodies which are not in news though, but there have been some questions which have been frequently appearing. Recurrently, these questions from these bodies have been appearing in the UPSC Civil Services prelims examination. National Commission for Backward Classes, National Commission for Scheduled Caste, National Commission for Scheduled Tribes. As we have been covering the related current affairs, polity related current affairs in this integrated GS batch polity module, polity course, along with the polity static part. So today also, following the same pattern, I am going to cover National Commission for Scheduled Caste, National Commission for Backward Caste related current affairs part, in which, as per which, the National Commission for Backward Castes has been given the constitutional status. Earlier, National Commission for Backward Castes was not having an independent constitutional article. Now, after the constitutional amendment, this article has been changed. This Constitution of India, our Constitution of India has been changed, and the new article, Article 338B, Article 335B has been inserted in the Constitution of India. Then we are going to cover Finance Commission of India. Finance Commission has been in news because of the submission of the report of Finance Commission, right? फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के चलते फाइनेंस कमीशन न्यूज में काफी ज्यादा आ रहा है, तो उसको भी हम कवर करेंगे. फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, जस्ट 1 मिनट. फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 280. देन वी आर गोइंग टू कवर इंटरस्टेट कमीशन. इंटरस्टेट जो कमीशन है वो काफी ज्यादा न्यूज में नहीं रहता, बट despite being a constitutional body, governments of various periods in the Indian history, Indian political history, they have been creating extra constitutional bodies like your planning commission, your NDC, National Development Council, then Niti Aayog, but Interstate Council as a body has not been used despite Sarkariya Commission's recommendations and other things. So in this session of 2 hours, I am going to take you through all these issues in a mix of Hindi and English language. तो previous year questions पहले देखेंगे हम. Finance Commission of India, articles that deal with the Finance Commission of India, appointment and composition, analytical points like why Finance Commission of India, if it is called as Finance Commission of not the center but Finance Commission of India, it is the Union Finance Commission, it is not Central Finance Commission, right? Since it is a Union Finance Commission, why the members of the Union Finance Commission, which gives the recommendation, whether the recommendation, if the recommendations of Finance Commission are applicable to the distribution of revenues between the center and the states. When the states are equally interested in the recommendations of the Finance Commission, then why only central government appoints the members of the Union Finance Commission? So let's get started with these type of analytical points and all. Now, कमिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट, नेशनल कमीशन और ये सब मैंने बताया, अटॉर्नी जनरल, ये सारी चीजों को हम कवर करेंगे. कंपैरिजन बिटवीन वेरियस बॉडीज, फास्ट रिवीजन. फास्ट रिवीजन के लिए वी हैव क्रिएटेड अ टेबल वेयर यू वुड बी एबल टू एनालाइज एंड सी ऑल दीज बॉडीज. स्टार्ट करते हैं गाइस. Already we have covered some of the details regarding the Finance Commission. Today I'll also tell you the difference between Article 275 and Article 282. Right? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि जीएस मेंस पेपर 2 में अच्छे मार्क्स लाने के लिए जरूरी हो जाते हैं, कंसीडरिंग द लेवल ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर. व्हाट इज फाइनेंस कमीशन? डिस्कस द मेन फंक्शंस ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन. 2004 पेपर 1 स्टेट फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस पूछा गया व्हाट इज फाइनेंस कमीशन, लेकिन स्पेसिफिकली फंक्शंस स्टेट के. पुराना पेपर था, पुराना क्वेश्चन इजी था. डिस्कस द रिकमेंडेशंस ऑफ 13th फाइनेंस कमीशन व्हिच हैव बीन अ डिपार्चर फ्रॉम द प्रीवियस कमीशंस फॉर स्ट्रेंथनिंग द लोकल गवर्नमेंट. 13th फाइनेंस कमीशन ने पहली बार 1.5% एक्स्ट्रा रेवेन्यू लोकल गवर्नमेंट्स के लिए दिया था. उसी के अराउंड ये क्वेश्चन पूछा गया, राइट. देन
how is the Finance Commission of India constituted? What do you know about the terms of reference of recently constituted Finance Commission? Right? So these things are there. Now discuss. What do you know about the terms of reference? ये question कब पूछा गया? 2018 में. There was a controversy that why the terms of reference of the present Finance Commission, 15th Finance Commission, were formulated only by the central government, because those terms and conditions had some points which were not acceptable to southern states of India. We will see what were the contentious points which were not acceptable to the southern states of India. तो start करते हैं फटाफट. Finance Commission of India was established on 22nd November 1951. It was established under Article 280 of the Indian Constitution by the President of India. Article 280 talks about constitutional body Finance Commission. Finance Commission is not a permanent body. There is a recommendation that Finance Commission should be made permanent in the light of increasing vagaries, in the light of fluctuations being observed in the revenue collections under goods and services tax. Goods and services tax के आने के बाद रेवेन्यू स्टेबल नहीं है. रेवेन्यू कभी ऊपर जा रहा है 1,15,000 करोड़. लास्ट मंथ रेवेन्यू कलेक्शन अंडर जीएसटी वाज 1,15,000 करोड़. बट स्टेट्स हैव नॉट बीन गिवन द ड्यू कॉम्पेंसेशन. राइट? States have not been given the due compensation under this particular thing. So that's why these things are happening. Got it? तो ये सारी जो चीजें हो रही हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान देना होगा. राइट? So these things are there. Now, the Finance Commission has been provided for the Indian Constitution as a part of scheme of division of financial sources. Yesterday I told you that Finance Commission takes care of horizontal as well as vertical distribution of revenue. Right? There is a divisible pool at the central level, divisible pool of money. एक बाथटब होता है ना, जैसे मान लो कि ये पूल है, वैसे ही स्विमिंग पूल जैसे होता है, वैसे ये पैसों का पूल है. इसमें सारा पैसा जाता है जीएसटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एंड अदर रेवेन्यू. रेवेन्यू collected by the central government from disinvestment is not a part of disinvestment का revenue is not a part of disinvestment का revenue is not a part of divisible pool. Now, since these taxes are collected from the people living at the state level, states have got a say, states have got a share in this. People are living at the state level, states are also entitled to some share in this. People living at the state level, even though they are the citizens of India. Since we have got single citizenship, the central government will collect taxes from the people living at the state level, and on the basis of recommendations of the Finance Commission, this money is given back to the states. This is called as vertical distribution. Vertical distribution. When this money is divided between the states, this is called as horizontal distribution. Please note down. Clear?
क्लियर है सभी को? Vertical distribution and horizontal distribution should be clear to all of you. Done? So these things are there. Now, Article 280 of the Indian Constitution, President after 2 years of commencement of Indian Constitution and thereafter every 5 years has to constitute a Finance Commission of India. It shall be the duty of the Commission to make recommendations to the President in relation to the distribution between the Union and the states of net proceeds of taxes which are to be or may be divided between them and the allocation between the states of the respective shares of such proceeds. Alright. The principles which should govern the grants in aid of the revenues of the states out of consolidated fund of India. तो ये तो है फैक्चुअल पार्ट. फाइनेंस कमीशन काम क्या क्या करता है? प्रेसिडेंट आफ्टर द 2 years प्रेसिडेंट ने ये फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया. फेयर इनफ? Is it working fine? Is the video working fine? There are some issues. Just give me 1 minute. Is it working fine now, guys? Everyone, please comment. फाइन नाउ? ओके. सो ये तो फैक्चुअल पार्ट है. हर 5 साल में एक बार फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट किया जाता है. 2011 से 2015, 2015 से 2020, 21 से 25, 26. ठीक है. 21, 22 से 25, 26 ईयर के लिए फाइनेंस कमीशन ये नया वाला लगाया जाएगा. फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड बिटवीन दी स्टेट्स इंटर से को डिसाइड करती है. स्टेट्स बिटवीन ऑल दी स्टेट्स. ठीक है. स्टेट्स इंटर से. सो दीज थिंग्स आर देयर. नाउ एनी अदर मैटर रेफर टू दी. क्या क्या काम करवाए जाते हैं? देखो यहां पे लिखा है इट शैल बी दी ड्यूटी ऑफ द कमीशन to make recommendations to the president in relation to the distribution between the union and the states of net proceeds of the taxes which are to be or may be divided between them. which are to be divided, जो उनके बीच में डिवाइड होने हैं या जो डिवाइड किए जा सकते हैं. and the allocation between each states. ये जो लाइन है ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती है. दिस लाइन टॉक्स अबाउट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन. तो जो मेरा अभी नया कोर्स पॉलिटिका आएगा, द न्यू कोर्स दैट आई विल बी कमिंग अप विद, दिस आर्टिकल्स वाली लैंग्वेज, ये वाली आर्टिकल्स वाली जो फ्रेजियोलॉजी है उसको मैं पूरे अच्छे से समझाऊंगा ताकि पॉलिटिका कोई क्वेश्चन तुम लोगों का गलत नहीं होगा. ये मेरी गारंटी रहेगी. राइट. सिंपल लैंग्वेज में मैंने ये समझा दिया. अब इसको कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में जो आर्टिकल्स हैं वो यहां पे है. एनी अदर मैटर रेफर टू द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट्स ऑफ साउंड फाइनेंस. कमीशन शैल डिटरमाइन देयर प्रोसीजर and shall have such powers in the performance of their functions as the parliament may by law confer on them. President can also constitute finance commission before the expiry of 5 years if he considers it to be necessary. President can also constitute finance commission before the expiry of 5 years. Clear? As he considers them necessary.
So Article 281 of the Indian Constitution, it is related to the recommendations of Finance Commission. President has to lay the recommendations made by Finance Commission and its explanatory memorandum before each house of the Parliament. Before each house of the Parliament. Clear? So these things are there. It is related to the recommendations of the Finance Commission. Which articles deal with the Finance Commission? Article 280, 281 अभी हमने देख लिया, आगे देखते हैं. Who constitutes the Finance Commission? President of India every 5 years. So Finance Commission is not a permanent body, you have to remember. Answer analytically. अगर क्वेश्चन देखना हो, should there be a finance commission for the, should there be a permanent finance commission? Answer is yes again, right? There should be a permanent finance commission. Got it? तो क्यों होना चाहिए वो हम समझेंगे, और अगर होना चाहिए तो उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए हम ये भी समझेंगे. Got it? So these type of things are there. Now आगे चलते हैं. What is the composition of the Finance Commission? Finance Commission chairperson and members. Chairperson heads the commission and presides over the activities. He should have had a public affairs experience. He should be a person who has got experience in the public affairs. There are 4 other members. So 1 plus 4. Parliament determines legally the qualifications of members. And in this respect, Parliament has passed Finance Commission of Conditions of Office Act 1951 in the very first year after this. Got it? In the very first year of after independence. These things are there. Now, the 4 members should be or have been qualified as High Court judges or be knowledgeable in finance, or they should be experienced in financial matters. Right? All the appointments are made by the President of the country under Article 74 on the basis of aid and advice of Council of Ministers. ठीक है, on the basis of aid and advice. Right? The salary of the members is as per the provisions laid down by the Constitution. Members shall give part-time or service to the Commission as scheduled by the President. Members shall give part-time or service. Part-time service भी members दे सकते हैं. ये पॉइंट हमने कल की क्लास में भी देखा था. क्या क्या ग्राउंड्स हैं जिन ग्राउंड्स पे मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? इफ अ मेंबर इज फाउंड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, इन्वॉल्व्ड इन अ विली एक्ट, वाइल एक्ट, ये भी हमने कल देखा था. द टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज नॉट फिक्स्ड. Tenure of the members of the Finance Commission is not fixed. It is decided by the President by notification, and in some cases the members are also reappointment. They are also reappointed. There is no bar on reappointment. There is no stopping the reappointment. Right? Yes, financial matters include, मजे मत लो, ठीक है, तो थोड़ा सीरियसली. फाइनेंशियल मैटर्स डू नॉट इंक्लूड इलीगल मैटर्स, ये सारा कुछ है. नाउ की रोल ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज टू act as the instrument to divide the proceeds of divisible taxes between the center and the states, or in case of taxes that are collected by the center but the proceeds of such taxes are allocated between the states, to determine the principles of such allocation. Finance Commission of India also determines the principles of governing the grants in aids. देखो गाइस, यहां पे क्या है कि फाइनेंस कमीशन ने पहले तो बंटवारा कर दिया, ठीक है, लेकिन कोकिला बेन की तरह अगर एक बच्चा कमजोर रह जाता है तो उसको एक्स्ट्रा पैसे देता है फाइनेंस कमीशन. कोकिला बेन ने नहीं दिए थे. कोकिला बेन इज एन इमेजिनरी नेम, वी आर जस्ट डिस्कसिंग इट. ठीक है, ठीक है. तो क्या होता है, फाइनेंस कमीशन जिन स्टेट्स का Prime Minister Modi had objected to this way back in 2010-11, that why
फाइनेंस कमीशन ने हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन किया। यूनियन फाइनेंसेस जो है, यूनियन लेवल पे जो डिविजिबल पूल है उसका पैसा नीचे दिया। दिस इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, राइट। अब जब ये पैसा हॉरिजॉन्टली पंजाब, हरियाणा, इसको पैसा दिया जाता है, पंजाब को, हरियाणा को, यूपी को, ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया। मनी इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ अ क्राइटेरिया। मनी इज डिवाइडेड between the states on the basis of a criteria। क्राइटेरिया में क्या क्या होता है ये हम अभी समझेंगे, जैसे कि पॉपुलेशन, ग्रीनरी कवर क्या है, और सेंटर जो है फिनेंस कमीशन को अपॉइंट करते टाइम टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये क्राइटेरिया लिख देती है कि क्राइटेरिया बनाते टाइम फिनेंस कमीशन को क्या क्या कंसीडर करना है, व्हाट इज टू बी कंसीडर्ड। पॉपुलेशन जिस स्टेट की ज्यादा है उसको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, या जिन स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है उनको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। जिन स्टेट्स में ग्रीन कवर ज्यादा है, हिमाचल प्रदेश, उनको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, या जिन स्टेट्स में बैकवर्ड एरियाज हैं उनको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। जो स्टेट्स इंडस्ट्रियली प्रोग्रेसिव हैं उनको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्राइटेरिया लगाया जाता है। व्हाट फॉर्मूला टू बी फॉलोड, प्रेसिडेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट इस फॉर्मूला को निर्धारित करती है। फाइनेंस कमीशन अपने आप वो फॉर्मूला बनाता है, लेकिन किस तरह का फॉर्मूला बनाया जाएगा, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में प्रेसिडेंट यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रेसिडेंट को ये कहती है कि फाइनेंस कमीशन को ये बोलो कि ये सारी चीजों का ध्यान रखे ये फॉर्मूला बनाते टाइम, मनी को डिवाइड करते टाइम। क्लियर? So this is how this is done. क्लियर? अब यहां पे क्या होता है, ये तो हो गया टैक्सेबल डिवीजन जो हमने पॉइंट नंबर 1 पढ़ा, डिवीजन ऑफ टैक्सेबल मनी, टैक्स कलेक्टेड मनी, डिवीजन ऑफ टैक्स कलेक्टेड मनी। दूसरा पार्ट क्या होता है, मान लो कि पंजाब को डिवीजन के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 25,000 करोड़ रुपीस मिलेंगे पर ईयर, जिसमें कि जीएसटी का टैक्स है, इनकम टैक्स है, सारा कुछ है। फिर अगर पंजाब का रेवेन्यू डेफिसिट, पंजाब का जो रोजमर्रा का खर्चा है कितना है, रोजमर्रा का खर्चा 37,000 करोड़ है साल का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 37,000 करोड़ है, फाइनेंस कमीशन की ग्रांट्स देने के बाद 12,000 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब यहां पे इस लाइन को पढ़ो, read this line. Finance Commission of India also determines the principles of governing the grants and aids of the revenues of the states out of consolidated fund of India. ठीक है, ग्रांट्स दी जाती हैं उन स्टेट्स को जिनका खर्चा पानी पूरा नहीं होता। अब इसमें से फाइनेंस कमीशन ये कहेगा कि चलो ठीक है, इसको हम 3,500 करोड़ और दे देते हैं। सिमिलरली बिहार को हम थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा और दे देते ताकि उनका रेवेन्यू डेफिसिट पूरा हो जाए। दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेकेंड पॉइंट गिवन हियर। क्लियर है?
Take your time and just tell me if it is clear to you or not. साउंड फाइनेंस मतलब कि अपने फाइनेंसेस को साउंड वे में चलाना। ऐसा नहीं है कि फालतू के खर्चे करना, कि एमएलएज और एमपीज के लिए आप पैसा पानी की तरह बहा रहे हो, है ना। ये सब नहीं करना है आपको। Clear? The commission has the responsibility of considering any matter referred to the commission by the president in the interest of sound finance. President under Article 280 lays the recommendations of the Finance Commission before each house of the Parliament with an explanatory note. As to the action to be taken on the recommendations. President under Article 280 lays the recommendations of the Finance Commission before each house of the Parliament. So this is there. Now, Commission makes the recommendations to the President with regard to the distribution of the proceeds of taxes between the Union and the states. Principles which should govern the grants in aid to be given to the states. Any other matter referred to the Commission by the President in the interest of sound finance. साउंड फाइनेंस मतलब जैसे हरियाणा में, पंजाब में क्या है कि पंजाब के ऊपर 45,000 करोड़ रुपीस का डेट है, कर्जा है, ठीक है। अब वो डेट कर्जा होने के बावजूद क्या है, वहां पे मिनिस्टर्स को नई नई कारें दी जा रही हैं, कार्स दी जा रही है, टोयोटा, इनोवा, कैमरी, टॉप मॉडल, ठीक है। ये क्या है, साउंड फाइनेंस नहीं है। तो ऐसा अगर कोई कमीशन कर रहा है तो प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन को ये कहते हैं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ऐसे पॉइंट्स डाल देंगे प्रेसिडेंट, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन को कहेंगे कि जो स्टेट्स अपना खर्चा में बर्बादी कर रही हैं उनको पैसे ज्यादा ना दिए जाएं। क्लियर है। रेवेन्यू गैप फिलिंग अप्रोच जो है, अब ये फैक्ट अगर आपको क्लियर है तो मैं एनालिटिकल पॉइंट बताऊं इसके अराउंड। इफ दिस फैक्ट, दीज टू फैक्ट्स आर क्लियर टू यू, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब मैंने आपको बता दिया। If you would say, then I would tell you one other point of analysis. Yes, Prime Minister Modi, when he was Chief Minister in 2010-11, he criticized the Finance Commission for following this approach. ये तो वही बात है कि पप्पू जो राहुल गांधी मान लो या कोई भी है, जिसके 33% मार्क्स हैं, जिसके 28% मार्क्स हैं, उसको आप 5% पैसा दे रहे हो। लेकिन this in a way penalizes the states which are doing better. He said that Gujarat does not have any revenue deficit, so that means Gujarat will not get any extra revenue, whereas Punjab, if it is not managing its expenses well, then by adopting the second formula, the Finance Commission will give revenue deficit grants. These grants which are given to a state to help that state fill up its revenue deficit to some extent by the Finance Commission is like legitimizing इम्प्रॉपर बिहेवियर। जो बच्चा फेल हो रहा है, माँ बाप उसको 500 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं कि बेटा ट्यूशन लगा लो, है ना। लेकिन फाइनेंस कमीशन का ये एनालिसिस ये कहता है कि ऐसा इसलिए सोचा गया था कि सभी स्टेट्स इक्वली प्रिविलेज नहीं है, सभी स्टेट्स तमिलनाडु की तरह नहीं है, कोस्टल स्टेट्स नहीं है, सभी स्टेट्स गुजरात जैसे कोस्टल स्टेट्स नहीं है, इसलिए डिसएडवांटेजेस हैं। पंजाब एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, पाकिस्तान लगता है, बिहार में लैंडलॉक्ड है, कोसी फ्लड्स आती हैं हर बार। तो फाइनेंस कमीशन एक पैटर्नलिस्टिक अप्रोच लेता है, लेकिन स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक सेंस में देखा जाए तो स्टेट्स इसके खिलाफ हैं, स्टेट्स आर अगेंस्ट दिस अप्रोच। दिस पॉइंट ऑफ एनालिसिस इज क्लियर टू यू? ऑलराइट एवरीवन, फैक्चुअल नहीं पढ़ाऊंगा मैं, एनालिटिकल ज्यादा पढ़ाऊंगा, फैक्ट्स अपने आप याद हो जाएंगे। यू विल अप्रिशिएट दिस इन अ बिट ऑफ अ टाइम।
Clear to everyone? Please say yes, guys. If this point is clear. तो ये जो सेकंड फंडा है ना, इसके चलते ग्रांट्स दी जाती हैं, ग्रांट्स इन दी हेल्प ऑफ रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट्स विच आर आफ्टर बीइंग गिवन द मनी बाय द फाइनेंस कमीशन विच आर हैविंग अ रेवेन्यू डेफिसिट. रेवेन्यू डेफिसिट मतलब रोजमर्रा का डेली एक्सपेंडिचर, जो उनका एनुअल रेकरिंग रीअकरिंग एक्सपेंडिचर है, एम्प्लॉयज की सैलरी, स्कीम्स एक्सेट्रा. अगर कोई स्टेट वो भी नहीं चला पा रही तो उसको हेल्प करता है फाइनेंस कमीशन. लेकिन इन अ वे इस हेल्प करने के चक्कर में वो स्टेट्स को कम पैसे मिलते हैं जो अच्छा काम कर रही हैं. कैसे कम पैसे मिलते हैं? देखो, इज इट गॉन? यस, इट्स गॉन. मैंने जो इस स्लाइड पे बताया था ना आपको, इट हैज गॉट इरेज्ड. तो मैंने जो स्लाइड पे बताया ना, सेंटर से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ डिविजिबल पूल से, उससे पैसे मिले 28 लाख करोड़ रुपए, एक एग्जांपल के लिए, ठीक है. अब या तो सभी स्टेट्स को वो इक्वली मिले. हो क्या रहा है कि गुजरात जैसी स्टेट जिसका रेवेन्यू डेफिसिट कम है, रेवेन्यू डेफिसिट नील है, ठीक है, मान लो जब मोदी हुआ करते थे तो रेवेन्यू डेफिसिट नील था, नील नहीं था मतलब बहुत कम था गुजरात. दूसरी तरफ है बिहार. अब बिहार को तो फाइनेंस कमीशन पैसे दे देगा, बिहार का रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा है. बिहार को या तो सभी स्टेट्स को, 28 स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स को 1 लाख करोड़ रुपीस ईच मिल जाए, इक्वालिटी हो क्या रहा है? गुजरात को मिलेंगे 70,000 करोड़ रुपीस इस 28 लाख रुपीस में से, और बिहार को मिलेंगे 70,000 प्लस एक्स्ट्रा मनी, बिकॉज बिहार का रेवेन्यू डेफिसिट 13.5, मान लो 13,500 करोड़ बचता है. बिहार का टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था 83,500 करोड़, जिसमें से 70,000 करोड़ बिहार को मिल गए. किसके वजह से मिले? डिविजिबल पूल फाइनेंस कमीशन ने दिए, एलोकेट किए. उसके बाद अगर बिहार का 13,500 करोड़ रुपीस रेवेन्यू डेफिसिट है तो इसमें से फाइनेंस कमीशन 6,700 करोड़ या 7,000 करोड़ और दे देगा. अब गुजरात ये रोता है, गुजरात जो एक एफिशिएंट स्टेट है, तमिलनाडु जो एक अच्छी स्टेट है, वो इसको ऑब्जेक्ट करते हैं कि हमने तो वो क्राइटेरिया फुलफिल किया, हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाया, लेकिन आपने पैसे ज्यादा बिहार को क्यों दे दिए? गॉट इट नाउ? Is this clear to everyone? These are the points of analysis around which the questions are being asked in the mains. Everybody please say yes. Then only I will be able to proceed further. क्लियर है? चलें आगे. चलो जी, देखो ये हो गया. मेरे 3-4 पॉइंट्स बताऊंगा, मजेदार पॉइंट, जिसमें तुम्हें अच्छा लगेगा कि हाँ अब तसल्ली हुई कि कोई पढ़ाता कैसे और कोई पढ़ता कैसे. फालतू की चीजें तुम खुद पढ़ सकते हो, है ना, थियोरेटिकल चीजें, उसके लिए दुनिया बैठी है, नहीं तो बुक से भी पढ़ लोगे. अभी जो जिस वे से मैं समझा रहा हूं, हाँ एक बार मैं फैक्चुअल डिटेल्स फटाफट से टच कर दूंगा. दूसरी बड़ी दिक्कत क्या है? 2 तरह की ग्रांट्स हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशन में ये टर्म नहीं दे रखी, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स के नाम से जानते हैं, एंड द अदर टाइप्स ऑफ ग्रांट्स वी नो बाय द नेम ऑफ डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स.
स्टैट्यूटरी ग्रांट्स एंड डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, ठीक है, स्टैट्यूटरी एंड डिस्क्रिशनरी, आर्टिकल 275 एंड आर्टिकल 282. Article 275, these grants are also called as finance commission grants. These grants, the grants that we talked about, grants in the aid of revenue, grants in aid of the revenue of the states, grants in aid of the revenue of the states, ठीक है, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स. ध्यान से सुनते जाओ, तुम्हें समझ आ गया होगा मैं क्या लिख रहा हूं. ये ग्रांट्स तो जो है स्टैट्यूट में दे रखी हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 280 के तहत दी जाती है. रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, फाइनेंस कमीशन हैज बीन चोजन फॉर दीज ग्रांट्स. In a way, Article 280 has been interpreted in this manner that उसका स्कोप लिमिटेड कर दिया है. एनालिसिस ये कहता है हमारा कि the way in which Article 275 has been interpreted, it has limited the scope of finance commission grants. क्यों? डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स ये हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यदि लगता है कि किसी स्टेट की मदद करनी है, स्टेट को ज्यादा पैसे दे दिए जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बिहार में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को छोड़ा क्या, साथ क्या छोड़ा, नीतीश कुमार के बिहार को 10,000 करोड़ का एडिशनल पैकेज दे दिया. किसने? मोदी सरकार ने. क्यों? एनडीए से हाथ मिला लिया. पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए ये ग्रांट्स दी जाती हैं. जब प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद चीफ मिनिस्टर थे तो वो इस चीज को क्रिटिसाइज करते थे. प्लानिंग कमीशन को उन्होंने आर्म चेयर एडवाइजर कहा था. मोंटेक सिंह आलूवालिया यूज्ड टू बी दी चेयरपर्सन फॉर, यू कैन से चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन प्लानिंग कमीशन. ठीक है, प्लानिंग कमीशन क्या करता था? ये ग्रांट्स देने के लिए स्टेट्स को बोलता था कंडीशनैलिटीज पूरी करो, हम आपको पैसा देंगे. जो स्टेट्स ओपोजिशन रूल्ड थी, यानी कि जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स थी, मोदी सरकार या कोई और, गुजरात की मोदी सरकार को यह कहा गया कि तुम्हारे सोशल इंडिसेस में परफॉर्मेंस बहुत लो है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टाटा का नैनो प्लांट लगवाने में बहुत अच्छी है, लेकिन you are faltering on the social welfare, so you will have to allocate this much X percentage of your money towards social sector schemes, then only we will give you these discretionary grants. यानी कि स्टेट्स को फिनेंस कमीशन की ग्रांट्स देने के बाद 100% ये है, मान लो फिनेंस कमीशन ने 42% दे दिया, बचा कितना? 58%. ये 58% सेंट्रल गवर्नमेंट का है. इस 58% में से सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पैसा डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स के वे में खर्च करती है, कुछ पैसा टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस ऑफ इंडिया, राफेल खरीदने महंगे सस्ते, उसके लिए खर्च करती है. अब ये 50% जो है स्टेट्स के ऊपर ही खर्च करेगी सेंटर. काफी ज्यादा पैसा स्टेट्स के ऊपर खर्च किया जाता है, जो तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की स्टेट्स हैं. जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस वाली स्टेट्स को स्पेशल पैकेजेस दे दिए जाते थे, क्योंकि आर्टिकल 282 में ऐसा लिखा है. आई विल टेल यू, लेट मी पुल आउट आर्टिकल 282, द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ इट. Is it clearly visible to all of you? अब तो दिख रहा है. एक्सपेंडिचर डिफरेबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल बाय द यूनियन और अ स्टेट आउट ऑफ इट्स रेवेन्यू. यूनियन
पहले मैं यूनियन पढ़ रहा हूं, ठीक है। यूनियन में मेक एनी ग्रांट्स फॉर एनी पब्लिक पर्पस notwithstanding that the purpose is not the one with respect to which parliament or legislature of the state may make laws। बिना किसी चीज के रुकावट पैदा करते हुए यूनियन को यदि पैसा देना है तो यूनियन पैसा दे सकती है स्टेट्स को अपनी मनमाने तरीके से। कोई चीज स्टेट को यूनियन को सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं रोकेगी। इज दिस क्लियर? Is this clear to everyone? समझ में आ गया? चलो पीपीटी पे वापस। दूसरा चलो एक बता देता हूं, लगे हाथ 275। ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स। अब इसमें थोड़ा सा इसको ब्रॉडर कर लेते हैं। Such sums as the parliament may by law provide shall be charged on the consolidated fund of India each year as the grants in aid of revenues of such states as the parliament may determine to be in need of assistance। सेंटर को पार्लियामेंट को यदि ये लगता है कि कुछ स्टेट्स को असिस्टेंस की जरूरत है तो उनके लिए पार्लियामेंट ये लॉ बना सकता है। इसीलिए इनको लॉ बनाने के बाद दी जाने वाली ग्रांट्स को स्टैट्यूटरी ग्रांट्स कहते हैं। मतलब समझ में आया? 275, ठीक है। फॉर डिफरेंट प्रोवाइडेड दैट दे शैल बी पेड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एज ग्रांट्स इन द हेल्प ऑफ रेवेन्यूज ऑफ दोज स्टेट्स, ठीक है, जिनका रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है, टू एनेबल देम टू मीट द कॉस्ट ऑफ सच स्कीम्स ऑफ डेवलपमेंट एज मे बी अंडरटेकन बाय द स्टेट्स, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाली स्टेट्स को और ये सब। अब यहां पे पता क्या लिखा है? These shall be paid out of consolidated fund। अब यहां पे आगे देखोगे पूरा, मैं जो इसका एनालिसिस तुम्हें सीधा बता रहा हूं, वैसे तो यहां पे ये लिखा है ये ग्रांट्स देते टाइम फाइनेंस कमीशन को कंसल्ट किया जाए, ठीक है, फाइनेंस कमीशन को कंसल्ट किया जाए। अब जब तक ये क्लॉज 1 की ये कंडीशन गवर्नमेंट पूरी नहीं करती तब तक के लिए गवर्नमेंट खुद से 1-2 साल काम कर सकती है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट आफ्टर अ फाइनेंस कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड नो ग्रांट और नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस क्लॉज बाय द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट आफ्टर कंसिडरिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन। यानी कि स्टैट्यूटरी ग्रांट्स फाइनेंस कमीशन के गठन के बाद, फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद स्टैट्यूटरी ग्रांट्स किसके बेसिस पे होनी चाहिए? स्टैट्यूटरी ग्रांट्स शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस ओनली एंड ओनली। क्लियर? Is this clear to all my students? तो दो तरह की ग्रांट्स जो मैं आपको समझा रहा हूं वो ये हैं, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स और डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। आलम ये है, situation over the last few years is that the grants which are given in a discretionary manner by bodies like planning commission और नीति आयोग, अभी तो नीति आयोग का कोई रोल नहीं है, ठीक है, जो ग्रांट्स प्लानिंग कमीशन द्वारा दी जा रही थी वो
फाइनेंस कमीशन वाली ग्रांट से एक्सीड होने लग गई, बढ़ने लग गई, तो फिर फाइनेंस कमीशन का फायदा क्या हुआ? What is the utility of finance commission? What is the utility of calling finance commission as a constitutional body? है ना, मजाक ही हो गया ये तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि फाइनेंस कमीशन का रोल डिमिनिश कर रहा है आर्टिकल 282 पॉइंट ऑफ एनालिसिस, इफ यू गाइस आर एबल टू अप्रिशिएट दिस। क्लियर है? Okay, so these things are there. Now article 281 of the Indian Constitution, ये समझ में आ गया ना सबको? तो प्लानिंग कमीशन धीरे धीरे से इन ग्रांट्स को बढ़ाता जा रहा था, क्योंकि 58% पैसा सेंटर के पास है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पाकिस्तान पे थोड़ी ना पैसा खर्च करना है। कितने खरीद लोगे राफेल महंगे खरीदोगे, पॉलिटिकल पार्टी में कितनी बार खरीद लोगे, है ना? इसलिए ये पैसा भी कोई ऐसा तो है नहीं कि नेपाल पे जाके खर्च कर देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। खर्च तो इंडिया में ही होगा, वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए होगा, इलेक्शन मैनिफेस्टो इंप्लीमेंट करने के लिए होगा। तो इसलिए इसको पॉलिटिकल कलर दिया जा रहा है। ओपोजिशन स्टेट्स को पैसा कम दो, अपनी पार्टी के द्वारा रूल करी जा रही स्टेट्स को बीजेपी या कांग्रेस पैसा ज्यादा देती है, ठीक है? उस वजह से इन ग्रांट्स को क्रिटिसाइज किया जाता था। प्राइम मिनिस्टर मोदी इतनी ईगो हो तो ऐसी, इतनी गुस्सा था उनको, इतना गुस्सा था कि प्लानिंग कमीशन को ही खत्म कर दिया, अब ला दिया नीति आयोग। ठीक है, ये बात जान लो कि प्लानिंग कमीशन के टाइम पे जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी या आज जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनका पैसा यहीं से दिया जाता है। और दूसरा पॉइंट जो आपको प्रीलिम्स के लिए जानना है, क्या फाइनेंस कमीशन की ग्रांट्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होती हैं? यस, द ग्रांट्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यस, अ बिग यस। Clear? All right, guys, done for everyone. सर ग्रांट्स में प्रेसिडेंट की कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी। बच्चे, प्रेसिडेंट कौन सी ग्रांट्स की बात कर रहे हो? पहले तो ये बताओ स्वाति, कौन सी ग्रांट्स की बात कर रहे हो माय डियर? स्टैट्यूटरी ग्रांट्स की बात कर रहे हो या डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स की बात कर रहे हो? ग्रांट्स, नीति आयोग डज नॉट गिव एनी ग्रांट्स। आई विल टेल यू दैट ऑल्सो। व्हाट हार्म हैज द एबोलिशन ऑफ नीति आयोग डन टू द स्टेट ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स एट दी स्टेट लेवल? नीति आयोग के आने से, प्लानिंग कमीशन के एबोलिश होने से क्या नुकसान हुआ है वो भी हम समझेंगे। Statutory grants. President of India does not have any role. I'll tell you the terms of reference of the Finance Commission are formulated after consultation with
not even consultation. The terms of reference are created by, are formulated by the president on its by the finance ministry, by the union cabinet. ठीक है, तो जो इस बार ये जो ग्रांट्स बनाई, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाई गई थी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होती है? टर्म्स ऑफ रेफरेंस होती है जिनके दायरे में फिनेंस कमीशन को अपनी रिकमेंडेशंस देनी है। जैसे कि अगर क्रिकेट का मैच हो रहा है, तो क्रिकेट के मैच में ये पिच है, अगर यार चलो ये पिच है, तो फिनेंस कमीशन को, रेफरी को ये बोल दिया जाता है कि अगर बॉल उड़ती उड़ती गई तो छक्का, है ना, सिक्सर। वैसे ही फिनेंस कमीशन को ये बोला जाता है कि तुम्हें स्टेट्स के पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए, स्टेट्स ने जिन्होंने पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल एक टर्म ऑफ कंडीशन, टर्म ऑफ रेफरेंस ये भी हो सकती है कि जिन स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल की है उन स्टेट्स को ज्यादा पैसे दिए जाएं। इस बार की जो फाइनेंस कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस थी, ये 15th फाइनेंस कमीशन की, उन पे बहुत बड़ा इशू हो गया था। क्या इशू हो गया था? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन जस्ट 1 मिनट। लेट मी पुल आउट द पीपीटी फॉर एनालिसिस। Just a minute, guys. We'll have to first download. Just 1 minute. So here we go. This is the PPT from which I am going to teach for another 5-7 minutes. टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब समझ में आ गया कि जैसे तुम लोग मोबाइल लेने जाते हो तो तुम्हारे मम्मी पापा ये बोलते हैं कि बेटा वो वाला फोन लेना जिसमें रेडियो चलता हो, बेटा वो वाला फोन लेना जिससे तू सुबह अलार्म लगा के उठ जाए, है ना। या फिर वो वाला, मतलब प्याज लेने जाते हो, आलू लेने जाते हो, तो भी तुम्हें टर्म्स ऑफ रेफरेंस दी जाती है, मोटे आलू मत लेना, छोटे आलू लेना, ज्यादा बड़ा आलू मत लेना, मीठा निकलेगा, राइट। तो मम्मी की डांट और वो सब। वैसे ही फिनेंस कमीशन को ये हिदायतें दी जाती हैं कि अपनी रिकमेंडेशंस देते टाइम आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तुम्हें। जस्ट गिव मी 1 मिनट। बड़े ध्यान से, बहुत अच्छे से मैंने ये पीपीटीज वगैरह बनाई थी दिल से, तो तुम लोग उसका भरपूर फायदा उठाओ। फिनेंस कमीशन आर्टिकल 280, ये सारा कुछ मैंने बता दिया। ये पीपीटी भी मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। इसमें ना कुछ कुछ चीजें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं। इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज, स्टूडेंट्स क्या करते हैं वहां पे डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट पे गोला लगा के आ जाते हैं, राइट। Every member of the commission shall hold the office for such period as may be specified in the order of the president appointing him, but shall be eligible for reappointment. Every member of the commission shall be eligible for reappointment, provided that he may by letter addressed to the president resign his office. ये सारा कुछ तो ठीक है। अब मैं सीधा पते पे आ रहा हूं कि हुआ क्या था अभी। Terms of reference. First thing to be noted down, terms of reference for the finance commission, issues with the working of union finance commission, issues with the heading has to be issues with the working of union finance commission, issues with the working of union finance commission.
क्लियर? इश्यूज क्या है इसके? देयर इज नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट फॉर यूनियन फाइनेंस कमीशन. There is no permanent secretariat for Union Finance Commission. Number 2, the terms of reference of Union Finance Commission are unilaterally decided by the central government. The terms of reference of Union Finance Commission are unilaterally decided by the central government, even as these terms of reference have got a huge implication on the outcome of Finance Commission recommendations. The terms of reference of Union Finance Commission are unilaterally decided by the center. The terms of reference of Union Finance Commission are unilaterally decided by the center. Even as, जबकि, even as का मतलब यहां पे है जबकि, even as these terms of reference have got huge implication for the huge impact on the final recommendations of the Finance Commission. Clear? Is this clear to everyone? So these things are just 1 minute. So these things are there. समझ में आया? टर्म्स ऑफ रेफरेंस. प्रेसिडेंशियल, देखो ये प्रेसिडेंट नहीं बनाते, दे बेसिकली दीज आर क्रिएटेड अंडर, दीज टर्म्स ऑफ रेफरेंस आर फॉर्मुलेटेड अंडर आर्टिकल 74 ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट. Presidential terms of reference of 15th Finance Commission had raised pretty many questions. Recently, a conclave of finance ministers of the southern states, South India की जो states हैं, उन्होंने एक कॉन्क्लेव, एक मीटिंग करी थी 2017-18 में. उन्होंने कंसर्न्स रेज करे कि ऑर्डिनरली जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस होती है ना, वो सेम होती है कि बेटा मोबाइल लेना, अच्छा लेना, ये देख लेना कि उसमें एप्स एंड्रॉइड की चलती हो, ठीक है, और उसमें रेडियो भी हो और उसमें जीपीएस भी हो, ये सब. लेकिन इस बार ड्रास्टिकली टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में कुछ एडिशंस करी गई. नंबर 1, सदर्न स्टेट्स का ये कंसर्न है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट के कंधे पे रख के जो ये फाइनेंस कमीशन को ये टर्म ऑफ रेफरेंस दी है, ये इस ब्रॉडर टर्म के दायरे में रहते हुए फाइनेंस कमीशन को रिपोर्ट बनानी है. उसमें ये लिख दिया गया है, डायरेक्टिव टू यूज द पॉपुलेशन डेटा इन द टर्म ऑफ रेफरेंस फ्रॉम 2011 census and not the 1971 census that was used earlier is an exaggeration. कंसर्न 1 को कहा जा रहा है कि ये बेबुनियाद है, ज्यादा बढ़ा के बात करी जा रही है. लेकिन सदर्न स्टेट्स ये कहती हैं कि 1971 का जो बच्चा पैदा हुआ था, 1971 से सदर्न स्टेट्स ने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है. पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी और अगर लेटेस्ट सेंसस के अकॉर्डिंग फाइनेंस कमीशन पैसा देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि 2011 का सेंसस फिगर्स को, पॉपुलेशन को यूज करके पैसा दिया जाए. मैंने आपको पॉलिटी की इसी क्लासेस में बताया था कि तमिलनाडु की पॉपुलेशन डबल नहीं हुई 1971 से आज तक. सदर्न स्टेट तमिलनाडु की पॉपुलेशन डबल नहीं हुई, जबकि यूपी की डबल से भी ज्यादा हो गई है. तो उस हिसाब से यूपी को डबल से भी ज्यादा पैसे मिलेंगे, है ना. सदर्न स्टेट्स का ये कंसर्न वैलिड है कि आपने 1971 का क्राइटेरिया आपको लेना चाहिए था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉपुलर स्टेट्स, बीजेपी गवर्नमेंट ने पॉपुलर स्टेट्स जो इंडिया की हैं, जो आबादी वाले इलाके हैं, वहां पे वोट बैंक पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने के लिए, वोटें लेने के लिए, वोट्स लेने के लिए जानबूझ के 2011 सेंसस क्यों किया,
जबकि पहले से ये कन्वेंशन परंपरा चलती हुई आ रही है कि 1971 सेंसस लिया जाए। गॉट इट? मैं जानबूझ के आगे कर रहा हूं ताकि तुम मेरे पे फोकस करो। समझ में आया? So these things are there. समझ में आया? तो मेरा इस पे काउंटर पॉइंट ये है, मेरा एनालिसिस देखो, यूपीएससी में अगर तुम्हें दिन बोला जाए कि दिन को रात करो तो तुम करोगे, रात को बोला जाए दिन करो तो भी तुम्हें करना पड़ेगा। हर पॉइंट का काउंटर पॉइंट तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट्स हो। एक कारण ये भी है, लॉजिकली देखो, अगर मैं 1971 के बाद पैदा हुआ हूं, इसका मतलब तो सदर्न स्टेट्स ये कह रही हैं फाइनेंस कमीशन को कि जो 1971 के बाद पैदा हुआ है उसको रिकॉग्नाइज ही मत करो, उसके लिए पैसा दो ही मत। पॉपुलेशन कंट्रोल अपनी जगह है, लेकिन जो लोग पैदा हो गए, क्या उनको हक नहीं है कि उनके लिए भी फाइनेंस कमीशन कुछ पैसा दे? आफ्टर ऑल दे आर दी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, है ना? सिंपल सा लॉजिक तो ये है ना कि एक स्टेट को अगर आप 1971 के जमाने का पैसा दोगे, जब उसकी पॉपुलेशन कम होती थी, तो क्या वो स्टेट अपनी जरूरतों का ध्यान रख पाएगा? क्या वो अपने सिटीजन्स को, इंडिया दैट इज भारत के आर्टिकल 1 के सिटीजन्स को इक्वल स्टेटस दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। समझ में आया? Legally, the general purpose transfers to the state by way of tax distribution and grants are meant to enable them to provide comparable levels of public service to all their residents at a comparable tax effort. Public services have to be provided to the current population and not just population of 1971 or 2011. So, ये इसका काउंटर पॉइंट है। अगला पॉइंट चलते हैं, और क्या ऐसी चेंज लाई गई फाइनेंस कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जिससे कुछ सदर्न स्टेट्स को आपत्ति हुई, प्रॉब्लम हुई, इश्यूज हुए? आस्किंग द फाइनेंस कमीशन टू एग्जामिन वेदर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, जो मैंने तुम्हें अभी समझाई, कौन सी ग्रांट्स? ग्रांट्स इन द एड ऑफ स्टेट्स रेवेन्यू, जिन स्टेट्स का रेवेन्यू डेफिसिट होता है। रेवेन्यू डेफिसिट कैसे होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर minus revenue income, where revenue expenditure is more, revenue deficit है। सेंटर ने फाइनेंस कमीशन को ये तक बोल दिया कि आप ये बताओ कि क्या रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स देने की जरूरत भी है। ये तो वो वाली बात हो गई कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम पे जो उनको बुरा लगा था, जिस पॉइंट पे उनको खुन्नस आई थी, वो वाला पॉइंट यहां पे लिख दिया, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स देनी क्यों है। यहां पे पता क्या दिक्कत है? ये कहा जा रहा है, नीति आयोग ये कह रहा है कि भागो भागो भागो, स्टेट्स को भगाओ, कंपटीशन करो, और यूएसए की तरह हम पूरा कॉपी कर रहे हैं उस मॉडल को। यूएसए में फ्लोरिडा वगैरह ये सारी स्टेट्स में, साउथ कैरोलिना और ये सब में भगाया जाता है उनको। भाई घोड़े को एक साथ, घोड़ों को भगाओगे तो समझ में भी आएगा। हमारे यहां कुछ स्टेट्स बहुत ही पीछे हैं, पिछड़ी हुई हैं, वहां पे हर साल फ्लड्स आती हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, हर स्टेट की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। ओडिशा में हर साल साइक्लोन्स आते हैं, है ना? पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, हरियाणा चलो ठीक है दिल्ली के पास में है, दिल्ली में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है। तो हर स्टेट की अपनी अपनी जरूरतें हैं। बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। अब तुम उनको बोल रहे हो कि भैया हम एक लिस्ट बना देंगे, तुम्हारी कॉम्पिटिटिव रैंकिंग दे देंगे, उस हिसाब से तुम्हें ग्रांट मिलेगी। ये क्या मतलब हुआ? ये तो कोई सेट नहीं बैठता ना। इंडिया जैसी कंट्री में जहां लेगर्ड स्टेट्स हैं, बैकवर्ड स्टेट्स हैं, वहां पे तुम ये करो कि ये सारी ग्रांट्स नहीं मिलेंगी, कंपटीशन होगा, तो वो गलत है। वो क्राइटेरिया यहां पे फिट नहीं बैठता। समझ में आया? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम है भाई।
अब तुम उनको बोल रहे हो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नीति आयोग ने एक इंडेक्स बना दिया, ये स्टेट जो है टॉपर है, ये स्टेट फ्लॉपर है, कोई मतलब नहीं बनता। कंसिडरिंग द इंपैक्ट ऑफ, समझ में आ गया ये कि इतना बड़ा सवाल फाइनेंस कमीशन को दे दिया, इसका मतलब तो ये है स्टेट्स ये कहती हैं कि सेंटर इनडायरेक्टली फाइनेंस कमीशन को ये कह रहा है कि भैया ग्रांट ही मत दो, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दो ही मत। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में उसके मैंडेट में ये लिखा है फाइनेंस कमीशन के। गॉट इट? मजा आता है ना ऐसे एनालिटिकल पॉइंट्स देख के। चलो आगे। कंसिडरिंग द इंपैक्ट ऑफ फिस्कल सिचुएशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ सब्सटैंशियली एनहांस्ड डिवोल्यूशन। अब ये कहा गया कि भैया तुम 15th फाइनेंस कमीशन हो, तुम्हारे से पहले जो 13th फाइनेंस कमीशन था और उससे पहले जो 12th फाइनेंस कमीशन था वो 1.5% पैसा बढ़ाते थे। 12th फाइनेंस कमीशन ने 28% से 30% रेवेन्यू दे दिया सेंटर से स्टेट्स को। 13th फाइनेंस कमीशन ने 30% से 32% कर दिया। इंक्रीमेंटल इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीमेंटल जैसे कि एक सरकारी एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ती है। लेकिन तुम्हें 15th फाइनेंस कमीशन को बोला गया कि तुम्हें यह ध्यान रखना होगा, यू वुड हैव टू कीप इन माइंड कि 14th फाइनेंस कमीशन जो तुमसे पहले आया था उसने एक क्वांटम जंप पहले से दे दिया है, 10% एक्स्ट्रा करके स्टेट्स को 42% दे दिया है कि भैया अब तुम और मत दे देना वरना निर्मला मैडम जो है कंगाल हो जाएंगी। समझ में आया? ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का बैंड बज जाएगा सेंट्रल लेवल पे। कंसिडरिंग द इंपैक्ट ऑफ फिस्कल सिचुएशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, impact of fiscal situation after 14th finance commission gave the enhanced devolution, devolution मतलब distribution of money to the states from direct 32% to 42%. all right, तो दिस इज कपल्ड विद द कॉन्टिन्यूइंग इंपेरेटिव। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि मोदी सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट एक ख्वाब लेके चल रही है न्यू इंडिया बनाने का 2022 तक, जिसमें हर घर में बिजली होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने हैं। सेंटर ये कह रहा है कि अब आप और पैसे दे दोगे तो सेंटर की डिस्पोजल पे जो 58% है वो भी नहीं बचेगा। ठीक है, ऐसी हिदायतों का, ऐसी टर्म्स ऑफ रेफरेंस का इफेक्ट ये हुआ कि फाइनेंस कमीशन ने कुछ नहीं दिया, 1% कम कर दिया क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी हो गया है। ऐसा बहुत सालों के बाद हुआ है कि फाइनेंस कमीशन ने कोई पैसे ना दिए हों। गॉट इट? Asking the finance commission to look at the conditions that may be imposed by the central government while providing consent to the states when they borrow। अब यहां पे पता है क्या कहा जा रहा है? आर्टिकल 293 ये कहता है कि मैं अगर पंजाब का चीफ मिनिस्टर हूं, ध्यान से सुनना, 293 पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अगर मैं पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर हूं, पंजाब का मिनिस्टर हूं, ठीक है, even though I just happened to meet the finance minister of Punjab at airport recently. I was traveling somewhere last month only. Yes, I was coming back from Chandigarh to Delhi, right, during my wedding days and all. So there was a tall Sardar ji, he was wearing mask and all. Vikram तो गलत हो गया नाम, so भूल रहा हूं मैं थोड़ा सा। So I just got a chance to strike a meeting with him. एयरपोर्ट पे ना ऐसे बड़े बड़े लोग मिल जाते हैं, बाय फ्लाइट जाने का फायदा बड़ा ये होता है ना। तो he was discussing certain things which I cannot tell you and all, पर वापस आते हैं पते पे, ठीक है। तो I am a big fan of this finance minister. I used to follow him. He created his political party, People's Party of Punjab के नाम से। He was telling things about Congress party, he is working with Congress party and all. So इनका नाम है मनप्रीत सिंह बादल, राइट? कभी कभी स्किप हो जाते हैं नाम दिमाग से। मनप्रीत सिंह बादल। तो पॉइंट ये है, तो अब देखो, मैं पंजाब का अगर चीफ मिनिस्टर हूं, मैंने the conditions that may be imposed, मेरी स्टेट ने अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी, जैसे कोई लोन लेते हैं ना तो गारंटी लेनी पड़ती है। जैसे कि मैं लोन ले रहा हूं, मैं बोलूंगा कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम गारंटी दे दो कि अगर मैं लोन नहीं दूंगा तो तुम दे दोगे। वैसे ही पंजाब गवर्नमेंट अगर कोई लोन लेती है तो उसने अगर पहला लोन लेते टाइम किसकी गारंटी डलवाई? सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर गारंटी डलवाई थी तो अगली बार जब पंजाब गवर्नमेंट लोन लेगी,
आर्टिकल 293 के तहत हर बार पंजाब गवर्नमेंट को सेंटर की अनुमति लेनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कंडीशन नहीं दे रखी कि किस कंडीशन पे, किस पैरामीटर पे परमिशन दी जाएगी या नहीं। अब मान लो कि एक पिता हैं, एक फादर हैं, उनके 28 बच्चे हैं, पुराने जमाने में होते थे, ठीक है, तो बड़ी बात नहीं थी कोई। 28 बच्चे हैं जिनका नाम है पंजाब, हरियाणा, मान लो। अब पंजाब क्या जो फादर हैं जिनका नाम सेंटर है, वो क्या करते हैं, मान लो निर्मला मैडम है, उनके 28 बच्चे हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अब वो क्या कर रहे हैं कि मां क्या कर रही है कि अच्छा ये पंजाब है, यहां पे कौन सी पार्टी है, कांग्रेस, चलो कांग्रेस को लोन देने से मना कर दो, ठीक है, बीजेपी पंजाब को लोन नहीं देंगे हम। अच्छा बिहार, नीतीश कुमार ने अभी अभी हाथ मिलाया है भाजपा के साथ में, तो चलो अपना आदमी है, कंडीशन रिलैक्स कर दो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पावर को विम्सिकली यूज करती थी, फैंसीफुल वे में यूज कर रही थी। कांग्रेस भी ऐसा कर रही थी, जो ओपोजिशन रूल्ड स्टेट्स थी उनको फाइनेंसेस देने से मना कर दिया जाता था, जो अपनी रूल्ड स्टेट्स थी उनको फाइनेंसेस इजीली दे दिए जाते थे। अब इससे दिक्कत यह हो गई कि this power was being used in a highly politicized manner. Some states even dragged the center to the Supreme Court. समझ में आया? इसीलिए सेंटर का फाइनेंस कमीशन को यह कहना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को यह कहना कि आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस के तहत कंडीशंस दे दो, पैरामीटर्स दे दो कि अगर पंजाब का रेवेन्यू डेफिसिट उसके जीडीपी का, पंजाब के स्टेट ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट का 50% से ज्यादा है तो और कर्जा लेने से मना कर दिया जाएगा। अगर पंजाब हरियाणा का जीडीपी 50% से कम है कर्जा जीडीपी का, तो उसको अलाउ कर दिया जाएगा। अगर पंजाब का जीडीपी पिछले 3 सालों में गिर रहा है तो कर्जा लेने से मना कर दिया जाए। बराबर है ना, मतलब समझ में आया? इट इज गुड, दिस शुड नॉट बी अ मैटर ऑफ कंसर्न। कंसर्न तो है ये कि कंडीशंस क्यों लगाई जाएं। स्टेट्स ये कह रही हैं कि ये कंसर्न इसलिए है कि कंडीशंस लगाई क्यों जाएं। स्टेट्स ये कह रही हैं कि हम सॉवरेन स्टेट्स हैं, सेंटर को कोई कंडीशन नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। तो फिर आर्टिकल 293 कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्यों दिया? कभी कभी स्टेट्स इलेक्शन जीतने के लिए फालतू खर्चा कर सकती हैं। कोई बुलेट ट्रेन ले आया तो, है ना, कोई और जहाज कुछ उड़ाने लगा तो, कोई हरियाणा का चीफ मिनिस्टर है, अपने एमएलएस को खुश रखने के लिए उनको टोयोटा कैमरी देने लगा तो, इसीलिए फालतू खर्चा ना करें। सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का और हमारे इंटरनेशनल रुपए की वैल्यू का ध्यान रखने के लिए बोरोइंग को रेगुलेट करने की पावर दी गई है। अभी तक ये पावर पॉलिटिकली यूज हो रही थी कि विम्सिकली सेंटर किसी स्टेट को हां कह देता था, किसी को ना कह देता था। इसलिए अब अगर फाइनेंस कमीशन कोई कंडीशंस का फॉर्मूला दे देगा, उसके वजह से ऑब्जेक्टिविटी आ जाएगी कि हां अगर स्टेट के रेवेन्यूज गिर रहे हैं तो उसको पैसा नहीं देना चाहिए। गॉट इट एवरीवन? हाउ मेनी ऑफ यू आर वाचिंग दिस सेशन? क्विकली लेट्स हैव अ रोल कॉल। फटाफट से हाजिरी लगाओ, जल्दी छेती करो, ज्यादा देर नहीं लगाओ।
कंसर्न 3 ये है बच्चे कि जो 42% ऑल ऑफ अ सडन 32% से 13th कमीशन तक 32% पैसे दिए जाते थे सेंटर के द्वारा स्टेट्स को। 14th फाइनेंस कमीशन ने इसको ड्रास्टिकली 10% बढ़ा दिया, 42% कर दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन 15th फाइनेंस कमीशन को ये कह रही है कि अगली बार ये रिकमेंडेशंस देते हुए कि सेंटर स्टेट्स को कितना पैसा देगा टोटल 100% में से, आपको ये ध्यान रखना है कि पिछली बार 14th फाइनेंस कमीशन ने इतना ज्यादा क्वांटम जंप दे दिया है जिस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशन ऑलरेडी बहुत खराब है। क्लियर? ऑलराइट एवरीवन? Concern 5, asking the Commission to propose measurable performance-based incentives to states, यानी कि जो रेवेन्यू डेफिसिट वगैरह की भरपाई के लिए ग्रांट्स दी जाती हैं, कमीशन को यह कहा गया कि एक परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स का फॉर्मूला बनाया जाए जिस फॉर्मूला के तहत स्टेट्स को रेवेन्यू डेफिसिट की भरपाई करने के लिए ग्रांट्स दी जाएंगी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ नंबर ऑफ एरियाज सच एज इंप्लीमेंटेशन ऑफ फ्लैगशिप स्कीम्स, कि अगर किसी स्टेट ने फ्लैगशिप स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने में सेंटर का फायदा दिया है, सेंटर को सहयोग किया है, तो एक्स्ट्रा 5%। प्रोग्रेस टुवर्ड्स रिप्लेसमेंट रेट ऑफ पॉपुलेशन, जिस स्टेट ने टोटल फर्टिलिटी रेट अचीव कर लिया है एक्स्ट्रा 3%, ठीक है, नहीं तो नहीं मिलेगा। सेंटर जो है फाइनेंस कमीशन को यह कह रहा है कि कुछ ऐसा क्राइटेरिया बनाया जाए। अगर कोई स्टेट फालतू में अखिलेश डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, लैपटॉप दे रही है, -3%, ठीक है। कंट्रोल ऑन एक्सपेंडिचर ऑन पॉपुलिस्ट मेजर्स, अगर किसी स्टेट ने बिजली फ्री देने में उदय स्कीम इंप्लीमेंट करने में सेंटर का फायदा दिया है तो उसको एक्स्ट्रा 3%, विच इज अ गुड थिंग। नो, आवर स्टेट्स आर वेरी पॉपुलिस्ट। क्लियर? अब ये एक और क्राइटेरिया दे दिया है, प्रमोटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मतलब मैं इस पे क्या बोलूं? अब बिहार के चीफ मिनिस्टर से पूछो कि भैया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, अगर तुम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करोगे तो 5% मिलेगा। लालू प्रसाद यादव अगर मुख्यमंत्री होंगे तो पता क्या बोलेंगे? का भैया, मतलब समझ में आया तुम्हें? ये का है, समझ में आया? तो दिक्कत ये है कि उनको क्या समझाओगे तुम कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग लाइफ पे, एनवायरमेंट पे कुछ नहीं लिखा गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे क्यों? माना कि आमची गुजराती छे, माना कि प्राइम मिनिस्टर गुजराती हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि, समझ में आया? तो घाघरो चोली हो जाएगा ये, तो समझ रहे हो ना बात को? तो ये सारा था हमारा आज का एनालिसिस और ये सब, ठीक है। ठीक है, आज मैं 2-3 दिन से ना थोड़ा जल्दी उठ रहा था, इसलिए मैं थक जाता था क्लास में। तो क्या कर रहा था, मैं अच्छे से थोड़ा चीजों को पढ़ा रहा था, बट मजाक थोड़ा गायब हो गया था तुम्हारी क्लासेस से, है ना। आज मेरी आदत बन गई है 3-4-5 घंटे सोने की। 1-2 बजे से पहले नींद नहीं आती, 6 बजे उठना पड़ता है क्योंकि सुबह 8 बजे तुम्हारी क्लास होती है। और ये मेरी जो आर्मी के लोग हैं, जो ऑफिस बॉय एटसेट्रा, ये मेरे साथ 11 बजे जाते हैं, राइट। अब इनको मैं ये बोलूं कि बेटा अपना बिजनेस समझो, अपनी कंपनी समझो और सुबह 8 बजे उठ जाओ, 7 बजे और 8 बजे पहुंच जाओ, इनको मुझे जगाना पड़ता है, लाइक अ टीम लीडर, ठीक है। ही इज लिसनिंग टू मी, ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय अदरवाइज। तो क्या होता है, इनको मुझे खुद जगाना पड़ता है। मैं 6 बजे उठता हूँ, पहला फोन इनको करता हूँ कि संतोष उठ जाओ, फिर उसके बाद ये लड़का फिर सो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं 6:30-7 बजे फिर फोन करता हूँ कि उठ गए कि नहीं। फिर 8 बजे क्लास होती है, मेरा घर यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे है, तो मैं 7:45 बजे से फिर फोन करता हूँ कि ये रास्ते में है या नहीं तो फिर क्या होगा, वो हिस्ट्री वाले टीचर को बहाना मिल जाएगा, वो भी फिर वहां से क्या होगा, घर से क्लास लेंगे सोते सोते, है ना, चाय के कप के साथ। तो वो दिक्कत हो जाएगी, तुम्हारे लिए एक्सपीरियंस खराब होगा और हमारे प्लेटफॉर्म का नाम खराब होगा, इसीलिए दिक्कत है बहुत आजकल, ठीक है। सुबह उठना पड़ता है, इसलिए तुम देख रहे हो। फायदा ये भी हो गया कि डीएनए लाइव हो गया जल्दी, आजकल 10 बजे पूरे शुरू हो जाता है, 10 सवा 10।
कितने फायदे हैं तुम्हें, है ना। लेकिन मैं सो नहीं पाता प्रॉपरली। कल ऐसे गोटी मार गया, मैं सो गया, कल 2 क्लासेस तुम्हारी मिस हो गई, आज नहीं। राइट, तो आई शेयर एवरीथिंग विद यू। तो ये सारा कुछ था। आज की क्लास थोड़ा यहाँ पे खत्म करते हैं, बट अच्छे से हम ऐसी तरह से टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में फाइनेंस कमीशन का ये था इन डेप्थ एनालिसिस। ऑलराइट गाइस, clear? So I'll bounce back in the morning. We'll do the DNA a bit early from tomorrow onwards. ठंडी बहुत है, दिक्कत मेरे साथ एक और बहुत है। कल जल्दीबाजी में तुम्हारे साथ बता रहा हूं तो सुन लो। कल क्या हुआ, ये भाई साहब सो गए, ठीक है। अब मैंने इसको 7:45 बजे गलती से फोन कर लिया कि तुम पहुंच गए हो कि नहीं। आई वॉज अबाउट टू गो फॉर बाथ एंड ऑल, हिज फोन वॉज रिंगिंग एंड रिंगिंग। तो मैं समझ गया कि ये सो गया है, तो मेरे को 7:47 पे यहां पहुंचना पड़ा, ठीक है। तो उस चक्कर में मेरा कल नहाना मिस हो गया, जिस वजह से सारा दिन बेकार जाता है। और नहाने की आदत है तो बिना नहाए मैं ऑफिस नहीं आता हूं, बिकॉज दिस ऑफिस, दिस objective is like temple to me, it's like religion to me. I have dedicated my everything to this business, to this coaching, to this everything, right? प्रायोरिटीज थोड़ी बहुत शिफ्ट हो जाती हैं कि कभी कंटेंट पे फोकस नहीं करता मैं, लेकिन एडमिन पे फोकस करता हूं, ताकि अरुण शर्मा सर जैसे बेटर टीचर्स को लाया जा सके, वो भी फन एकेडमी जैसी कंपनीज के जंगल में, समझ रहे हो ना। आधा 1 घंटा उनसे बात हो जाती है कभी, फिर उनको समझाना अच्छे से। ही इज बीन अ टीचर टू मी एंड ही रिमेंबर्स व्हेन आई वाज हिज स्टूडेंट, बिकॉज आई वाज द नोटोरियस वन, ठीक है। तो टीचर मुझे याद रखते हैं इसलिए, बट आई वाज अ गुड शिष्य, यू कैन से, टू ऑल द टीचर्स। तो अच्छा काम, अच्छे नाम, नंबर ले आता था मैं सारा कुछ। तो उस वजह से उनको रिक्वेस्ट किया तो वो सर मान गए। लेकिन वो फन एकेडमी है तो बहुत सारी कॉल्स जाती हैं, तुम्हें पता ही है ना। तो ये सारा कुछ है। तो सुबह 8 बजे यहाँ पे आना पड़ता है इसी के चक्कर में। तो मैं सोच रहा हूँ डीएनए थोड़ी जल्दी कर देंगे, ताकि मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगा और 1 घंटा डीएनए के बाद सो लूंगा, राइट। सो दिस वाज ऑल। बाकी आप लोगों की छोटी छोटी जो क्वेरीज होती हैं, कभी कभी आप समझा करो, मेरी टीम जो है, प्रणव है या फिर सृष्टि मैम है, नई मैम है, या फिर दीपक है, या फिर टेक टीम जो है, वो काफी मेहनत करते हैं पीछे से, बैकएंड से। नवनीत अंकित है, राइट, अकाउंट्स टीम में है एमएल मोतीलाल जिनका नाम है। तो ये सब बहुत एफर्ट करते हैं। रात में 12-12, 1-1 बजे भी स्टूडेंट्स की कॉल्स आती हैं, तो दीज गाइज पिक अप द कॉल्स। श्रेष्ठा मैम है। तो कभी कभी हम लोगों से गलती हो जाती है, कुछ चीजें ये लोग स्किप कर जाते हैं, चाहते नहीं है, लेकिन होता है ना कि कुछ गलती हो गई, इतना सारा काम होता है, तो थोड़ा सा कभी कभी पेशेंस रखा करो, राइट। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट एज अ टीम टू गिव यू द बेस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस हियर। चीजें थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती हैं, बट वी विल इंश्योर दैट एवरीथिंग इज completed on time and in the best manner possible, right? So this was all. Thank you guys. Bye bye for today. See you again in the morning tomorrow, first with the DNA and then with the remaining classes. Good night guys. Bye bye. It was pleasure interacting with you guys after so many days. Thank you. Thank you guys.